Good morning, everyone. Here is Umang sir, and undoubtedly, I am going to teach you mathematics. Okay, and which chapter we are going on? We are going on chapter number 2, that is the fraction and decimals. And what's the topic we are going on? We are just doing the topic that is division of fractions. फ्रैक्शन का डिवीजन कर रहे हैं. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर. आज हम इस चैप्टर की क्या लेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे. मैंने आपको सिंपली आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर. कि रेसिप्रोकल क्या होता है? दैट मीन्स वी जस्ट टेक अ न्यूमरेटर टू द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर. मतलब जो फ्रैक्शन है उसको अपोजिट कर दिए, उल्टा कर दीजिए. न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह numerator. So today we are going to take just one step more of this exercise, and that is the word problem of this exercise. Okay, so now see what is the first question. Just understand, try to understand. All of you have books. Okay, now see, listen. Sahil has 1 kg and 500 gram of sugar. Okay, so Sahil has sugar. That is the question number 3rd. Sahil has sugar equal to how much? 1 kg 500 gram. 1 kg 500 gram. इतनी है sugar. Just what we can do it, we just change the whole whole quantity of sugar into gram. किलोग्राम है, पूरा ग्राम में चेंज कर दिया. Now we know very well that 1 kg is equal to 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. So 1000 plus 500, that means how many gram will be there? 1500 gram. Now how much quantity of sugar Sahil has? Sahil has 1500 gram. Okay, now he required to divide this into 3 equal part. उसने क्या करना है कि अब इसको पूरे को जो 1500 ग्राम है इसको पूरे को 3 हिस्सों में बांटना है, और वो भी इक्वल. तो इक्वल ऑब्वियसली, तो एक को कितना मिलेगा? नाउ यू हैव टू टेल हाउ मच वन गेट. तो व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट डिवाइडेड बाय 3, देन यू विल गेट द 3 इक्वल पार्ट्स. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? सो क्वांटिटी ऑफ शुगर. सो quantity of sugar in each part, each, और टोटल कितने थे? 3. so divided by 3. 1500 gram and divided by 3. now what you will get? 3 5s are 15. 3 5s are 15. so equal to is here. Okay, so you just have to write a 1500 in front of that equal to sign. Okay, now 1500 gram you have to divide it by 3. so 3 5s are 15. and how many 0? 20. And what I have to write here? Gram. So this line you have to write by yourself, that is hence each person get 500 gram of sugar. Each part get 500 gram of sugar. Clear? So it's very easy question. Now see the next question, that is the question number 4. A shopkeeper sold chocolates. एक शॉपकीपर था, एक दुकानदार था जिसने कुछ चॉकलेट्स को सोल्ड किया वर्थ ₹143. और सारी जो चॉकलेट्स थी उनकी कॉस्ट कितनी थी? 143. मतलब जो उसने टोटल चॉकलेट सोल्ड की, जो बेची चॉकलेट्स, उनकी कॉस्ट थी 143 रुपीज. इफ ईच चॉकलेट कॉस्ट ₹6 होल 1/2. एक चॉकलेट की कॉस्ट दी है 6 होल 1/2. ठीक है, तो इसका मतलब सब, इसका कहने का मतलब ये है कि सब जो चॉकलेट्स थी, उसने जितनी चॉकलेट बेची होंगी उनमें हर एक चॉकलेट की कॉस्ट 6 होल 1/2 रुपीज थी. तो हाउ मेनी चॉकलेट डेट इज सेल? कितनी बेचनी है? सो टोटल, very easy, total cost of chocolates कितनी थी भाई? ₹143. ₹143 is the chocolate of total cost of chocolate. ठीक है, now cost of each chocolate, cost of each
chocolate. Yes. What is the cost of each chocolate? Rupees 6 whole 1 upon 2. 6 whole 1 upon 2. So what you have to tell now? You have to tell how many chocolate did he sell. So number of chocolates is equal to कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स उसने सेल की? सी रुपीज 143 एंड डिवाइडेड बाई रुपीज 6 होल 1 अपॉन 2. आप टोटल कॉस्ट को एक चॉकलेट की कॉस्ट से डिवाइड है कि आपको मिल जाएंगी क्या? नंबर ऑफ चॉकलेट्स. ओके, नाउ सी हाउ कैन वी डिवाइड? यस, so first see rupees and rupees cancel in the division. Now what is left? 143 and divided by, just convert this number into the improper one. So 2 6 are 12, 12 and 1 13 upon 2. Now put 1 at the place here. Now what you will do? Just in place of division, what sign will come? Multiply. And what will we do? We just do the reciprocal of the number which come after the division sign. So now see, 143 by 1 into 2 upon 13 into हो गया और रेसिप्रोकल, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह. नाउ सी 13 1 13, criss cross and up and down, not numerator numerator denominator denominator. Okay, so I am doing cross multiplication. So 13 1 13, 13 1 13, 1 is left and again 13 1 13. So 11 upon 1 into 2 upon 1. So 11 into 2 is equal to 22 upon 1 into 1, 1. That means what is the answer? 22 chocolates. So you have to write this line in the last. Hence he sold 22 chocolates. Shopkeeper sold 22 chocolates. Clear? This line you have to write by yourself. I will not write. Okay? Okay? Clear? Now I am erasing this. You just have to pause the video and copy down it. Yeah. What is the next question now? अब यहाँ पर हमें एक चीज ये सिंपल समझ में आ रही है कि डिवीजन की एक्सरसाइज है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके किसके हैं? डिवीजन के ही हैं. किसके? डिवीजन के. क्योंकि डिवीजन की एक्सरसाइज है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो तो हम कैसे करेंगे. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, तो थोड़ा वहां पे यू हैव टू यूज योर माइंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. A tin container can hold 2 whole 1 upon 2 liter of oil. एक जो टिन कंटेनर है उसमें कितना लीटर ऑयल हो सकता है? 2 whole 1 upon 2. If each small container can hold 1 upon 4 liter of oil, how many such small container can be filled by the oil given in the container? Same thing. एक बड़ा कंटेनर है, बहुत बड़ा, उसमें कितना ऑयल है? 2 whole 1 upon 2 लीटर. अब उससे क्या कर रहे हैं? वो छोटे छोटे से कंटेनर में उसे फिल कर रहे हैं. एक बड़े कंटेनर में से जो ऑयल है उसको वो क्या कर रहे हैं कि एक छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे बॉक्सेस में, डिब्बे में, उसमें ऑयल को कर रहे हैं. और उस छोटे डिब्बे की क्या कैपेसिटी है? 1 upon 4 लीटर. ठीक है, और बड़े डिब्बे की क्या कैपेसिटी थी? 2 whole 1 upon 2 लीटर. सो आपको क्या बताना है? नाउ हाउ मेनी कंटेनर्स, स्मॉल कंटेनर्स कैन बी फिल्ड बाय द गिवन बिग कंटेनर. तो कितने छोटे कंटेनर बन पाएंगे? सो ऑब्वियसली क्या करना है आपको यहाँ पर भी? डिवाइड. जो बिग कंटेनर की क्वांटिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको डिवाइड करेंगे किससे? जो स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर दिया, आपको नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स मिल जाएंगे कि कितने कंटेनर्स बने. सो व्हाट लैंग्वेज यू विल राइट? सो कैपेसिटी ऑफ container equal to 2 whole 1 upon 2 liter. 1 upon 2 liter.
just convert it into improper one. ठीक है. Now we are not doing, we just convert it in the last में करेंगे. Now first we have to write a statements. ठीक है. Now capacity of small container. Capacity, you know what is the capacity? Capacity is a unit of, what is capacity? Capacity मात्रा, क्वांटिटी, उसकी यूनिट होती है. ठीक है. दैट इज द यूनिट. कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर इज इक्वल टू 1/4 लीटर. सो number of small container can be filled इज इक्वल टू कितने स्मॉल कंटेनर बन सकते हैं, जो आपकी टोटल क्वांटिटी है उसको आप एक कंटेनर की क्वांटिटी से डिवाइड कर दिए. सो 2 होल 1/2 लीटर डिवाइडेड बाय 1/4 liter. Now same thing, liter cancel. Now convert this into improper. 2 to the 4 and 1, 5/2 divide by 1/4. Now at the place of divide you just put the sign of multiply. So 5/2 into reciprocate. So 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे. Now cross and up down. So 2 1 the 2, 2 2 the 4. Now what is left? 5 2 the 10/1 or 10. So hence 10 small containers can be filled by the given container. Understand this? This statement you have to write in the last by yourself. Clear? So yes, next question number 6. You just pause the video and copy down. इजी है डिवाइड करना, सिंपल. बस यू हैव टू राइट अ लैंग्वेज. कोई इतनी इसमें वो नहीं है, आफत नहीं है ना. बहुत आसान है. ठीक है. यू कैन डू वेरी इजीली. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? बाय व्हाट नंबर शुड 30 होल 1/8 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 1 होल 1/3. मतलब कि आप 30 होल 1/8 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 1 होल 1/3 आ जाए. जैसे सपोज करते हैं कि हमने 30 होल 1/8 की x से मल्टीप्लाई की. ये मैं अभी केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, अभी आप कोई लिखेंगे नहीं इसको. ठीक है. सपोज कर रहे हैं कि हमने 30 होल 1/8 की x से मल्टीप्लाई की, क्योंकि वो कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 30 होल 1/8 बी मल्टीप्लाइड टू गेट कि क्या आ गया आंसर 1 होल 1/3. तो हमने मान लिया कि हमने भाई x से मल्टीप्लाई की इसकी, क्योंकि मैथ्स में तो मान लो, आंखें बंद करके, मैथ्स का काम ही है मानना. हमने मान लिया. ठीक है. तो 30 होल 1/8 की हमने मान लिया कि x से मल्टीप्लाई की, तो आंसर 1 होल 1/3 आया. ठीक. अब आपको वैल्यू किसकी बतानी है, यू हैव टू टेल द नंबर, किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई की. तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को अगर हम यही छोड़ दें x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x को हमने यही छोड़ दिया क्योंकि आपको वो नंबर बताना है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक. तो ये नंबर 30 होल 1/8 इसके साथ किस फॉर्म में मल्टीप्लाई, किस फॉर्म में मल्टीप्लाई. सो वी हैव टू टेक दिस नंबर टू द अपोजिट साइड और RHS. ये LHS में लेफ्ट हैंड साइड में से हम RHS ले आएंगे. तो RHS ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर गया तो ऑब्वियसली है प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई. तो ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, डिवाइड में. सो ऑलरेडी वहां पर क्या है 1 होल 1/3 डिवाइड 30 होल 1/8. Now what you will do? Convert it into improper. 3 1 the 3 and 1, 4/3. Divide की जगह multiply. 8 0 0, 8 3 the 24 means 240. 240 plus 1, 241 upon 8. Upon 8. Now please sorry.
first we will put the sign of what? Divide. ठीक है. Now change this sign of division into multiplication and do the reciprocal of the number that is after the division sign. So x is equal to 4/3 into 8/241. Now tell me, can we divide the numbers? क्या हम इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं? So the answer is no. Up and down और क्रिस क्रॉस नहीं हो रहे. So what will you do? You just what? Multiply this. 4 8 जा 32 upon 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 carry, 3 2 जा 6 and 1 7. So 32 upon 722, 723, that is a proper fraction. So we cannot convert it into the mixed fraction. So our answer is this. यही हमारा आंसर है. आगे बात सुनिए. इसी की तरह देखिए अगला क्वेश्चन है. If the product of two number, ठीक है, if the product of the last question we are going to do, that is question number 7. So you just pause the video and do it. Last question I am going to do. One question you have to do by yourself and finish this exercise. Okay. Yeah. Question is very important question. This is that's why I am going to do. 7 question is the product of two number. दो नंबर है जिनकी आपने मल्टीप्लाई की होगी तो आंसर जो आया वो है ये. So product of two numbers is equal to क्या है प्रोडक्ट भाई? क्या मल्टीप्लाई करके क्या है? 33/75. ठीक है. वन नंबर क्या है? वन नंबर is equal to 11/5. What do you have to find? Other number. You have to find other number. You have to find. Question mark. Same thing. दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की तभी तो प्रोडक्ट आया है ना. तो मान लिया हमने वो जो नंबर था, अदर नंबर, वो क्या था? x था. तो वन नंबर मीन्स 11/5 इंटू अदर नंबर. चलो अदर नंबर लिख लेते हैं, x नहीं लिखते. अदर नंबर लिख लेते हैं, x नहीं लिखते. 11/5 वन नंबर इंटू अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट. जो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या दिया हुआ है इन्होंने? 33/15. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? अदर नंबर. अदर नंबर के साथ में ये क्या है? अदर नंबर के ये सॉरी 33/75. 33/75. ओके. सो अदर नंबर के साथ में क्या है? 11/5. किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई. उधर ले आएंगे क्या हो जाएगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, मल्टीप्लाई डिवाइड. सो ऑलरेडी वहां पर क्या है? 33/75. तो उसके बाद में जाएगा. सो अदर नंबर इज इक्वल टू 33/75 ऑलरेडी है. मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो गया. नंबर क्या आया? 11/5. 11/5. नाउ व्हाट इज दैट? दोनों आपके किस फ्रैक्शन में है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर में. मिक्स में नहीं है तो चेंज नहीं करना. ठीक है. सो नाउ सीधा क्या करेंगे हम? डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में. डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया? रेसिप्रोकल. 5 ऊपर चला गया अपॉन 11 नीचे आ गया. नाउ क्रिस क्रॉस अप एंड डाउन. सो सी 5 on the 5, 5 on the 5, 5 5 the 25, 15. Now see 11 1 the 11, 11 3 the 33. ठीक है. सो क्या आया अब आप देखिए? 3 into 1 3 अपॉन 15 into 1 15. क्या मैं इस नंबर को और छोटा कर सकता हूँ? वैसे तो मैं यही कर देता, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपको मैं आराम से क्लियर दिखा दूं कि घिटपिट ना हुआ. आराम से हो सकता है. व्हाट इज दैट? 3 1 the 3, 3 5 the 15. So our answer is 1/5. So the other number is, hence the other number is 1/5. This line you have to write by yourself. और लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी, आप अपने आप देखेंगे, अपने आप करेंगे. आज हम इस फिनिश एक्सरसाइज को यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. यू जस्ट हैव टू कॉपी डाउन इट. ओके. पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन इट. ओके. थैंक यू.